هذا سلام تؤلم قلبي في المنام كلام بعد كلام وعين تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في الوجود لم لا لم لا 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 إذا بشتي البيوت لم لا 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 لم لا 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 هذا سلام فلم السلام ونظرة تؤلم اب اگر ہم قلبي بات کریں کہ ہم فلسطین میں کیا کر سکتے ہیں، پریکٹیکل اسٹیپ جو کیا کر سکتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلی بات جو یہ ہے جو ہمارا فرض بنتا ہے اور سب سے جو اہم ہے وہ جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب جہاد چونکہ اب یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور جو ہے نا وہ تلواریں اور ہتھیار لے کر نکل جائے، یا جو ہے نا وہ خود جو ہے ہتھیار نکل کے بندوقیں نکل کے لے کر نکل جائے اور جو ہے دوسرے ممالک پر دعویٰ بول دے، نہیں، بلکہ یہ اب ایک ایسا دور ہے جہاں پہ اسٹیبلش آرمیز ہوتی ہیں، اور آرمیز جو ہوتی ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں کہ انہیں پریپیئر ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ بارڈرز کو ڈیفینڈ کریں۔ اب تو بات یہ ثابت ہوئی کہ جہاد کا ڈسکم ہے، تو اگر ہم جہاد کرنے گئے بھی تو ہوگا یہ کہ الٹا ہمیں اٹھانے کے لیے کوئی بندہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جہاد کا جو ہے نا یہ آپشن والا چلے گا۔ اب آفٹر جہاد، اگر جہاد نہیں تو دین ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا جو نقطہ ہے میرے خیال سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے ڈونیشن۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ جہاد تو ہم لوگ کر نہیں سکتے، زمینی راستہ تو ہے نہیں، جا نہیں سکتے، تو اگر ہم لوگ جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، ایک چیز ہے جو سب کر سکتے ہیں، وہ ہے ڈونیشن۔ اور ہم لوگ ڈونیشن تو کم سے کم کر ہی سکتے ہیں مسلمان بھائیوں کے لیے، جس طرح وہ حدیث بھی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جاؤ نماز پڑھو، اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو ان کے چراغ کے لیے تیل بھجوا دو، اور کم سے کم ہم لوگ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو وہاں ضرورت ہے ہم لوگ اپنے ڈونیشن کریں، پیسے پہنچائیں، کیونکہ اب لوگ زمینی راستے پہ نہیں، کھانے پینے وغیرہ کی چیزیں یا کسی بھی جو ایڈس وغیرہ تو نہیں پہنچا سکتے، مگر ایسے کچھ ادارے بنے ہوئے ہیں کہ جو وہاں غزہ میں اس وقت ہیں، اور اس کے تھرو یہاں پہ ہمیں پاکستان میں بھی ایک ہے پاک ایڈ کے نام سے، پاک ایڈ والے کیا کرتے ہیں وہ ڈونیشن وہاں پہنچاتے ہیں، جو وہاں کے ادارے ان سے کنیکٹ ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس ایک آپشن یہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پاک ایڈ کے تھرو بھی نہیں کرتے تو جو آپ کو صحیح لگتا ہے کہ یہ بندہ آتھورائز ہے اور میری جو امانت ہے، میری امانت وہ جائے گا اور پہنچائے گا غزہ کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس، آپ ان کو چوز کر سکتے ہیں۔ اسی میں جو ہے نا اللہ کا خدمت جو ہے میرے خیال سے بہت اچھا کام کر رہا ہے خدمت بھی، اچھا، اور ہمارے بھی کچھ پرسنلی جو ہے نا کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہاں پہ ڈرلنگ وغیرہ کیے تھے، تو بہت اچھا ان کا رسپانس تھا۔ مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، پیسے جو ہمارا مال ہے، ہم بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز کو چوز کیا جائے، آپ کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ڈونیشن کرنا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ہمیں نالج تھی ہم نے وہ آپ کو بتا دیا، اب آپ کو جو آتھورائز لگے، جو آپ کو صحیح لگے، ایسے ہی نہیں کہ کیونکہ جب یہ ساری چیزیں یا جب یہ سارے معاملات آتے ہیں تو کچھ ایسی آرگنائزیشن یا ایسے ٹرسٹ بن جاتے ہیں جو ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ پیسے لینے اور غائب ہو جانا، تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال کرنا ہے کہ اگر آپ پیسے اپنی جیب سے نکال رہے ہیں تو وہ صحیح جگہ پہ جانے چاہیے، اور اس کے لیے آتھورائز لوگوں کو ہی آپ نے ان سے کنیکٹ کر۔ اب یہ ہے کہ ڈونیشنز کریں، یعنی اللہ کے جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو ان کے لیے ہم لوگ جتنا بھی ہم سے ہو سکے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری استطاعت پہ جو مال دیا ہے ان پر لگایا جائے۔ اب جتنی بھی جیسے آپ نے آرگنائزیشن کی بات کی، الخدمت ہے، جن کا مطلب یہ بات ہے کہ ان پر جا کے وہاں پہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں تو ان کو ہم لوگ جا کے دیں۔ اور دوسری بات کی دعا، کیا ہم تو کم سے کم ایک عام انسان کیا کرے گا، وہ یہ کر سکتا ہے کہ کم سے کم دعا تو کرے یار، اور ہمارے بھائیوں بہنوں کے لیے دعا تو بندہ کم از کم کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کی حدیث بھی جس میں اس میں ہے کہ جب ایک مسلمان کے جسم میں ایک مسلمان دو مسلمان مطلب ایک مسلمان جسم کے مانند ایک دوسرے مسلمان کی طرح، جب ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم پہ تکلیف ہوتی ہے، تو اگر ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی تو حقیقتاً یہ بات یہ ہے کہ ہم پہ پھر ہمارا پھر ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اور اسی میں آتا ہے نا کہ حدیث ہے کہ ایک مظلوم اور اللہ رب العزت کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا جب وہ دعا مانگتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دعا ایک پریکٹیکل اسٹیپ ہے، اور دعا ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم نے بس
बस ये कर लिया, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, नहीं, बल्कि दुआ में बहुत ताकत होती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनने वाला है। तो दुआ जो है ना एक बहुत बहुत जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। और देखिए कोशिश करें कि जो राइट प्लेयर्स है उनमें जो है ना कोशिश करेंगे दुआ मांगे, खास बिल्कुल तहज्जुद की बात कर रहा हूँ मैं कि तहज्जुद में आप अगर ये फलस्तीनी देखें, हम एक एक दुआ हमारे ये होती है कि हमने फेसबुक वाली दुआ होती है, यानी कि हमने लिख दिया "May Allah be with people of Palestine", ये असल में दुआ नहीं है। दुआ ये है कि आप जो है ना सिंसियरली अल्लाह ताला से अगर ठीक है आप ये बात कहो अल्लाह ताला से, आप ये अल्लाह से रिक्वेस्ट करो, या अल्लाह मेरे जो है ना इन भाइयों पे बहनों पे रहम फरमा। आप ये सोचे ना कि एक बंदा जिस जगह रह रहा है उसको यही नहीं पता कि मेरी मौत का वक्त कब आ जाए, यानी वहाँ पे इतनी बमबारी हो रही है, इतना वहाँ पे इनको सताया जा रहा है कि जैसे अगर हम इसको अपने ऊपर सोच के रखें मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है तो वो किस कंडीशन में होगा। तो यही कंडीशन आज हमारी होनी चाहिए, लेकिन हमारी कंडीशन है नहीं। अच्छा तो असल ये में हमारी हमारा ना कंडीशन होनी एक्चुअली चाहिए। बहुत ज्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड है, कुछ ज्यादा नॉन सीरियस। नॉन सीरियस भी इस तरह से कि देखिए जैसे मैंने बात की ना कि हमारे यहाँ तो कॉन्सर्ट चल रहे हैं, हमारे यहाँ पिकनिक्स हो रहे हैं और डिफरेंट जो है ना तफरीयात हमारे यहाँ चल रही है। एक आप ये सोचे ना कि भाई अब जो ये हदीस है कि मुसलमान जो उम्मत है यानी कि पूरी उम्मत है वो एक जिस्म के बारे में, ठीक है, अगर एक हिस्सा भी दर्द करता है तो पूरा जिस्म उसको वैसे करता है। क्या आपको लगता है कि हमारी सूरत हाल है कि हम वाकई में तकलीफ में हम सोच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें ना जिस टाइम ये मसले हो रहे थे उसी टाइम गवर्नमेंट अपनी माजरत के साथ हमारी गवर्नमेंट भी उसी टाइम पे कॉन्सर्ट करवा रही है। आप देखिए मतलब गवर्नमेंट लेवल पे जाके ये चीजें हो रही है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर ईमान इतना कमजोर हो चुका है, उनका दर्द हम महसूस ही नहीं कर पा रहे, उस टाइम हम लोग कॉन्सर्ट करवा बिल्कुल रहे ऐसे ही है। हैं। इसकी मिसाल हमें कैसी मिलती है कि जब आप वसल्लम ने दावत देना शुरू की थी इस्लाम की मक्के में, तो एक मुनाफिक था, उसने उसी उसी टाइम में यानी औरतों को बुला के नाच गाना शुरू करवा दिया था ताकि वो आप सल्लम की तरफ मुतवज्जे कुरान की तरफ मुतवज्जे ना हो। तो हमारा भी एक यही तो किरदार नहीं है कि हम लोग जहाँ पे हमारे मुसलमान भाई को इतना जुल्म किया जा रहा है और हम लोग उनके उसमें क्या कर रहे और हैं। माजरत के साथ हमारे यहाँ पे एक ये सवाल उठ रहा है कि अगर कायदे आजम ने जो है फलस्तीन को एक्सेप्ट नहीं किया मगर हम कर ले तो उससे क्या हो रहा है, ऊपर तो नहीं है, ये भी एक सवाल उठा है। और मैं सॉरी ना मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये भी जो है ना अगर मेरे ख्याल से अगर ये फलस्तीन का 7 अक्टूबर वाला जो मामला ना होता तो मुमकिन था कुछ ही अर्से में फलस्तीन जो है ना इसराइल को तस्लीम भी तस्लीम कर कर लेते। लेते। आपका हमने डिस्कस किया, देन वी डिस्कस अबाउट डोनेशंस, देन वी डिस्कस अबाउट दुआ। जो फोर्थ स्टेप है वो है बाइकॉट। अच्छा, बाइकआउट पे ना मतलब कि बाइकआउट पे कहा जाता है कि यार इससे क्या हो जाएगा, मतलब लोग सुनने में आते हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं, हत्ता कि नॉन मुस्लिम जो हैं वो भी बाइकआउट कर रहे हैं। कुछ ऐसे नॉन मुस्लिम हैं जो ह्यूमन राइट्स वगैरह के लिए वो लड़ रहे हैं कि भाई वाकई में एक्चुअल में फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है। और काफी सारी जिन्होंने ओपनली बोल दिया है ना कि हम लोग इसराइल के साथ हैं, वहां से तो कोई परचेज ही नहीं कर रहा, वो चाहे पाकिस्तान में हो या किसी दूसरी कंट्रीज में हो, नॉन मुस्लिम भी यहाँ तक के बाइकआउट प्रॉपर वे में बाइकआउट कर रहे हैं। हालांकि हमारे मुसलमान भाइयों में कमजोरी होगी मगर नॉन मुस्लिम इसको अच्छे से प्रॉपर में कर रहे हैं। मगर कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो हमें पता नहीं है, उसके बारे में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए या कोई ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहाँ की उसके रिप्लेसमेंट या ऑल्टरनेटिव की वो ऑल्टरनेटिव को शो किया जाए कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि यार देखो, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अगर आप बाइकआउट, कुछ लोग ज्यादा एडिक्टेड वगैरह होते हैं, चलो अगर आप लोग एक दिन में 10 कोल्ड ड्रिंक पीते हो, एक पी लो उसकी जगह पे, मतलब इस हद तक का बाइकआउट तो आप कर ही सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे यार मैं नहीं छोड़ सकता, ये है, मगर देखो बाइकआउट का मतलब ये नहीं होता आपने जबरदस्ती किसी को लान तान करनी है, तुम बेगैरत हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम छोड़ दो, ऐसा ना करो वैसा ना करो। इसमें भी हमें ये चीज मिलती है कि जो बाइकआउट को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस लेवल पे भी है, उलमा कराम की तरफ से आया है कि सख्ती से उन्होंने कहा है कि भाई बाइकआउट करना है, प्रॉपर वे में बाइकआउट करना है। और दूसरी चीज ये है कि उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपका बिजनेस है, जैसे अगर कोई बिजनेस वगैरह करता है, जैसे फाइवर की मिसाल ले लो, फाइवर भी हेडक्वार्टर जो है उसकी फाइवर है यहूदियों का है, फाइवर प्लेटफॉर्म जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। एक एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मिसाल से आप मेरी बात को समझेंगे। अब एक शख्स है जिसका फाइवर से ही इनकम वगैरह और सारी वो आ रही है, और उसको पता है अगर मैं बाइकआउट करता हूँ, फाइवर को नहीं यूज करता, तो उसको नुकसान हो सकता है, और उसके नुकसान के साथ साथ जो भी उसके अंडर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सबका नुकसान होगा। अब इस सूरत में उसको चाहिए कि वो वहां पे करता रहे। अब अब एक दूसरा बंदा है जिसको पता है यार मेरा बिजनेस यहाँ से है, या कोई ऐसी कंपनी है जो फाइवर उसके थ्रू या इसराइली प्रोडक्ट्स में आ रही है, या इसराइल की कंपनी में आ रहा हूँ, उनको फायदा पहुंचा रहा हूँ। तो अगर उसको लगता है यार ये बिजनेस छोड़ने से मेरा कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप फाइवर पे, हम लोग फाइवर फॉर एग्जाम्पल 100 में से 20% जाते फाइवर को, आपको 80% मिलता है।
अब आप 80% को छोड़ोगे 20% के लिए, तो आप उसके बगैर आपकी फैमिली, आपका घर वगैरह, वो सारी चीजें नहीं चल सकती, कि आपके लिए जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज वगैरह हैं, उनका भी नुकसान होगा। तो इस सूरत में आप तो नहीं करोगे, एक दूसरा शख्स है जिसके साथ उसके मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, ज्यादा बिजनेसेस हो सकते हैं, अगर वो अपना बिजनेस स्टॉप करते हैं, उसको ज्यादा नुकसान नहीं होता और वो उस नुकसान को बर्दाश्त कर सकता है, तो उसको चाहिए वो प्रॉपर वे में बाइकआउट करे। और इसी तरह खाने पीने की चीजों में अच्छा है, काफी हद तक लोग बाइकआउट कर रहे हैं, मगर हमारी थोड़ी कमजोरी भी है इसमें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कि करते हैं और फिर बाद में दलाइल भी देते हैं। खैर, हम लोग किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, मगर एक गैरत और हमीयत की बात है कि एक और इसमें देखें, इसमें जो है ना, जो बाइकआउट करना है वो अ, यहूदी प्रोडक्ट से भी करना है और इस्राएली प्रोडक्ट से भी करना है। फर्क समझने से पहले, कि यहूदी प्रोडक्ट्स वो इस्राएली प्रोडक्ट्स वो है जो क्या कहते हैं, जो इसराइल में बने, मेड इन इसराइल, ठीक है। और जो यहूदी प्रोडक्ट्स है वो ये है जो यहूदियों ने बनाए, अब चाहे वो अमेरिकन हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्वीडन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, वो उसमें जो शेयर शामिल है वो यहूदियों का शामिल है। तो उलमा ने मैंने जो नसीहत लिखी थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है दोनों ही तरह के प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। सही है। अच्छा, आप जैसे आपने पहले बात की ना कि अगर कोई बहुत ज्यादा मजबूरी में, देखिए बहुत ज्यादा मजबूरी में होता है कि जो है ना हराम चीज भी हलाल हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम दलील लें तो बात ये वाजिब होती है कि अगर आपको ये लगता है कि यार अगर मैंने जो है ना फॉर एग्जाम्पल इस फैक्ट्री में काम करता हूँ, बस कोई जरिए माश नहीं, तो इट्स फाइन, इस समझ बात है। और बाइकआउट का ऐसा भी है कि हम जो है ना किसी को गिरबान पकड़ के बोल रहे हैं कि भाई तो ये बाइकआउट करो, किसी को जबरदस्ती हम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बाइकआउट करो। ये सबका एक पर्सनल जो है ना वो ओपिनियन है, ठीक है, लेकिन हम इनकरेज यही करते हैं कि भैया आप, आपके दिल में दर्द है ना, और लोगों के दिल में यार किसका दिल करेगा कि जो है ना उस जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पर जो है ना हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को मारा जाए। लेकिन आप खुद चीज सोचो, अपने को सिनेरियो रखो कि आपके पड़ोस में, ठीक है, आप अपने पड़ोस से जो है ना चीजें खरीदते हो, चीजें लेते हो, ठीक है, और आपको पता चले कि आपके जो पड़ोस वाला है वो आपके ही बेटे पर या आपके ही किसी अपने पर जुल्म कर रहा है, तो आप क्या करोगे? उससे नाते खत्म करोगे, उससे रास्ते खत्म करोगे, उस पर इन्वेस्ट करना शुरू खत्म करोगे। तो ये बात वाज़ेह है करते करते। हाँ, देखिए सिनेरियो को समझे, हमारा जो लिया हुआ इनके जो प्रोडक्ट्स का माल है, हम लोग इसको हल्का समझ रहे हैं, ये हल्की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इनके प्रोडक्ट्स का बैकआउट भी करें, बहुत बड़ी बात है। कैसे? हम जो माल जो उनके प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, वो उन प्रोडक्ट से पूरे अपने जो भी अपनी बमबारी है वो तैयार करते हैं, पूरा माल तैयार करते हैं, जिसकी वजह से पूरे हमला कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, मैंने एक भाई से बात की बाइकआउट के बारे में, उन्होंने जवाब दिया पूरा पाकिस्तानी इसराइल का है। देखिए, हमसे जो सवाल होगा ना, वो सवाल हमसे ये होगा कि आपने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कितना काम किया। आप सिर्फ इस हालात में ये समझ लें कि अगर अल्लाह ताला ने हमसे पूछ लिया कि तुमने क्या किया, अगर हम लोग बाइकआउट भी ना कर सके तो क्या करें? अगर हम लोगों ने चले अल्लाह ताला से हमने ये कह दिया कि अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा था, हमने उनकी प्रोडक्ट्स को लेना छोड़ दिया, जहाँ पे ये जुल्म हो रहा है उन लोगों ने उनकी प्रोडक्ट्स को लेना छोड़, शायद हम लोग उस चीज से बच जाए, तो इसको बिल्कुल भी हल्का ना समझें। अच्छा, और कुछ प्रोडक्ट्स हो ना अपने, जो मेन प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से पूरा इसराइल जो है, जो पूरा इस बेस पे चल रहा है, जैसे जैसे कोक हो गई, मैकडोनल्ड्स हो गई, केएफसी हो गई, ये मेन प्रोडक्ट्स को अपना लाजमी हिस्सा बनाए कि इनका पूरा बाइकआउट करना है, ताकि इनको बहुत बहुत असर, क्योंकि अगर आप नेट पे भी जाके देखें ना तो बहुत असर इनको पड़ता है, और इन लोगों ने इनके और खुद बाकी के में अच्छा, इसी के साथ जो हमारे पास ये तकरीबन 4 से 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। और जो छठा पॉइंट है जो मैं समझता हूँ, वो है तज़किया नफ्स, यानी कि इंसान जो है ना, हर बंदा अपने आप को खुद देखे, वो खुद की तरफ पानी में है, यानी कि वो खुद क्या कर सकता है और वो कहाँ है क्या। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को भी देखा है, लड़कियों को देखा है, जो बात तो बड़े बड़े दावे से करते हैं कि भाई हम जो है ना जिहाद कर सकते हैं और हम जो है बस आप बस हुक्म करें, हम हाजिर हैं आपके लिए, जान भी कुर्बान है। यानी कि ठीक है, आपके जज्बात हैं, हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन आप ये पहले देखें कि आपने जो अपना किरदार है, ठीक है, आपने जो अपना करेक्टर है, आपने उस लेवल का ख्याल किया ना अपने आप को। यानी कि मैंने ऐसे लड़के लड़कियों को देखा है माता के साथ, जो मतलब एक हराम रिलेशन में, ठीक है, और वो गलत तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो लाइफ स्टाइल बिल्कुल जो है ना वो गलत है, ठीक है, वो गुनाहों में मुब्तला है, और वो ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम फलस्तीन के लड़ेंगे और हम जो ये करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि मतलब जो है बस ये एक जज्बात में कह देने वाली बात है, जो पाकिस्तानी कौम एज अ पाकिस्तानी नेशन हम अक्सर करते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम तज़किये की बात करें ना, क्योंकि अगर देखो, क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई किसी भी गुनाह में मुब्तला हो, जैसे हैं हम सब गुनहगार हैं, हम सब तो सही गुनाह हो बात है। जाते हैं, मगर इसमें मसला ये है कि
कम से कम मुसलमान जो है ना, ईमान हमारे अंदर है, हमारा ईमान जब टटोलता है ना और हमें गैरत आती है, तब हमारे दिल में जज्बात आते हैं। मगर इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एक शख्स, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फरमाते हैं कि जब इंसान गुनाह करता है ना, इंसान गुनाह करता है, अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गुनाह हो रहा है, इसका असर दूसरे मुस्लिम ममालिक में भी होगा, मुसलमानों पे असर होता है इसका। अब पहले हमें खुद को भी सुधारना है। अब एक वो शख्स जो एक कोई भी किसी भी किस्म के गुनाह में मुब्तला है, अगर वो एक हराम चीज को नहीं छोड़ सकता, तो वो ये कैसे सोच सकता है कि मैं अल्लाह के लिए जिहाद निकलूंगा। करूंगा। एक इंसान हराम चीज को, एक बुरी आदत को, एक बैड हैबिट्स वगैरह को नहीं छोड़ सकता, तो वो कैसे अल्लाह की राह में जिहाद कर सकता है। सबसे बड़ा एक ये पॉइंट है। इसलिए हमें इस चीज पे बहुत ज्यादा गौर करना है कि देखो, हम ये सोचते हैं कि रमजान आएगा, उसके बाद मैं नेक काम करना शुरू कर दूंगा, गलत काम छोड़ दूंगा, हर गुनाह का काम छोड़ दूंगा और नेक बनना चाहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं उम्रा करूंगा, उम्रे के बाद करूंगा, कुछ बोलते हैं हज करूंगा, उसके बाद करूंगा। देखिए, ये अब जो मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है एक मुसलमान के लिए, कि वो ये सारी चीजें छोड़ के, गुनाहों को छोड़ के अल्लाह की तरफ रुजू करे कि या अल्लाह मुझसे गलती हुई, कि जिसकी वजह से हमारे मुसलमान बहनों भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा है। देखो, हम सब शामिल हैं इसमें, हम सब गुनहगार हैं, हमारा सब हिस्सा है इसमें। हम लोग गुनाह करते हैं, सोचते तक नहीं है। और अगर आज नहीं छोड़ेंगे ना, तो फिर कब छोड़ेंगे, मेरा ये सवाल है। यही तो बात है। देखिए, अपने इस्लाम को बचाने का, जो डिफेंड करने का जो सबसे बड़ा तरीका है ना, वो यही है कि आप उसको खुद प्रैक्टिस करो और अपने नफ्स का तज़किया करो। जब तक इंसान दीन पे नहीं चल रहा, दीन की बेसिक्स को नहीं पूरा कर रहा, तो किस तरह से वो अल्लाह के रास्ते में जाके वो लोगों के लिए मदद करेगा, जो भी जिहाद करेगा। तो यही बात है कि अपने नफ्स का बंदा तज़किया करे, अपने आप को गुनाहों से बंदा बचाए। और साथ ही अपने आप को जो है ना वो एजुकेट करें, ठीक है, दीन को पढ़े, दीन को समझे। और मासूम के साथ हमें से अक्सर को तो हमें कुरान भी जो है ना वो पढ़ना नहीं आता, बस अलिफ बे भी नहीं आ रही होती। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ भाई। तो हमें सिर्फ कुछ छोटी सी नई बातें हमें शुरू में पता होती है कि भाई फला तरह की नमाज पढ़नी है, जो है ना अल्फातिया रटी हुई है, और एक दो सूरतें छोटी मोटी जो है ना वो याद की है, उससे बस नमाज होगी। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आपको जो है ना, आप मुसलमान हो, आपका कनेक्शन जो है कुरान के साथ है। कुरान को आपको आपको समझना चाहिए, कुरान क्या मैसेज दे रहा है वो आपको बताना चाहिए। आपको अपनी हिस्ट्री पता होना चाहिए, मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पता होना चाहिए आपको। इन चीजों को भी शामिल होना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा आपका कितना स्ट्रांग बॉन्ड है। अच्छा, दूसरी इसके साथ ना एक और पॉइंट ये है कि जिस तरह ये तो हमारे दीनी हो गया, इसके साथ हमें डीपली नॉलेज होनी चाहिए कि असल में ये जो सारी लड़ाई हो रही है, ये सारा मसला क्या है। इस्लाम को पढ़ने, तारीख को पढ़ने, तभी हमें समझ आएगा। और जब हम, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग कितनी चीजें गूगल करते हैं, कुछ भी हम गूगल कर लेते हैं, हम हर गन वगैरह गूगल करते हैं, हर फजूलियात गूगल करके उससे सीखते हैं। कम से कम हम अपनी जो दीन की जो कम से कम जो हमारे हिस्ट्री है इस्लाम की, उसको पढ़ें। ये असल में ये जो तनाज़ा है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा एक्चुअल हो क्या रहा है। कुछ जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की इसके ऊपर, कि लोग गलत चीज को फैला रहे हैं, मतलब है कुछ और दिखा कुछ रहे हैं। अब इसके साथ हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं, उसके साथ हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है सोशल मीडिया पे। एक ये अहम पॉइंट ये है कि हम लोग किस तरह मदद कर सकते हैं। कम से कम हम जितना, जैसे कोई फेसबुक पे कर सकता है, कोई ट्विटर पे कर सकता है, इंस्टाग्राम पे कर सकता है, लिंक्डइन पे भी कर सकता है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ज्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसको आप ज्यादा यूज करते हो या जिसमें ज्यादा आपको लगता है कि यार इसमें मेरी बात ज्यादा सुनी जाएगी, आप उस प्लेटफॉर्म को यूज करो और जो सही बात है अवेयरनेस क्रिएट करो कि यार जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो जुल्म है, जो फलस्तीन में हो रहा है वो जुल्म है, उसको आप बताओ लोगों को। किस तरह करोगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम कोशिश कर सकते हैं, जब अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि आपने क्या किया अपने मुसलमान भाइयों के लिए, तो हम लोग कम से कम ये कर सकते, ये तो कह सकते हैं, या अल्लाह, जो उस वक्त मेरे इख्तियार में था उस चीज को मैंने किया। अब मेरे इख्तियार में था कि मैं ये करूं, लोगों तक बात पहुंचाऊं। अगर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम बात तो पहुंचा ही सकते हैं लोगों तक। देखिए, इन सब जो हमने बातें की, इन हालात को देखने के बावजूद भी अगर हमारी जिंदगी नहीं बदली, आप सोचें कि जो सबसे बड़ा फितना भी आएगा, दज्जाल का फितना, उसको हम लोग किस तरह से फेस करेंगे। हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया इस फितने से, दज्जाल का फितना। वो कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, उसके ऊपर काफिर लिखा हुआ होगा, हम देख लेंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल है, इस स्कॉलर ने बड़ी अच्छी तरीके से दी कि आप सिगरेट पीते हो, उसने कहा मैं सिगरेट पीता हूँ। भाई, जब सिगरेट पे लिखा हुआ है कि ये कैंसर का जरिया है और उससे नुकसान इसमें होते हैं, तो आप फिर भी पी रहे हो, तो यही वजह है कि हम लोग उसको देख के भी हम लोग उस पर ईमान ले आएंगे, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है। इन हालात के बावजूद भी अगर हम लोग इस तरफ नहीं है, तो हकीकत हम लोग उस फितने से भी नहीं बच पाएंगे। तो मतलब हम इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हो कि ये हमारे ईमान की कमजोरी बिल्कुल होगी और कमजोर बिल्कुल ईमान वाले उसकी फितने में पड़ ही पड़ ही जाएंगे। जाएंगे। तो हमें जाहिर सी बात है कि तज़किया
तज़किया तज़किया करना है, अपना नफ्स करना का जरूरी गुनाहों है। को छोड़ना है। और कहते हैं कि देखो आपकी जिंदगी में ना नफली इबादत वगैरह ज्यादा भले ना हो, आप ज्यादा कुरान नहीं पढ़ते, ज्यादा नफली इबादत वगैरह नहीं करते, फराइज तक ही महदूद रहते हो, कोई मसला नहीं है, इसको करो भले, नफली इबादत को भले ज्यादा ना करो, मगर गुनाह से बचो। मेन चीज ये है आपने गुनाह नहीं करना, गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करनी है। और हमने तकरीबन यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट डिस्कस किए कि व्हाट देखिए एट द एंड जिसको जीतना है ना वो इस्लाम ही है, ठीक है, जीत मुसलमानों की होनी है। और ये तो तयशुदा बात है, ठीक है, और अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा चुके हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये है कि इस पूरे दौरानिए में किसका क्या रोल रहता है, कौन विलन अपने आप को पेश करता है, कौन जो है वो हीरो अपने आप को पेश करता है। वल असर जो है ना जमाना इस बात पे गवाह रहेगा, और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है अल्लाह के सामने आइंद अल्लाह, ये सब कुछ जो है ना डिस्कस होगा। और जब ये बात खुलेंगे तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि किसने मुसलमान होते हुए भी मुनाफिकत की, और किसने जो है वो हमारा साथ दिया, किसने हमारा जो है जो हमारे अगेंस्ट रहा, और किसने जो है ना ये साबित किया कि वो वाकई में कोई फ्रॉड का लगता है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें फ़लस्तीनी भाई बहनों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। फिर से एक बार मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को सहयोनियों से यहूदियों से आज़ादी अता फरमाए। अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम भी कुछ थोड़ा बहुत ही जो है ना फ़लस्तीनियों के लिए, अपने भाइयों अपनी बहनों के लिए कुछ कर सकें। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।